नमो नमः गुरु ओम गुरु गुरु नमो नमः. With the blessings of Pujya Gurudev, Shri Shri Ravi Shankar Vidya Mandir Trust, which is the educational wing of the Art of Living, completes its 25th year today, the 10th September. With the motto of Vidya Dadati Purnatvam, which means education brings completeness, we stand with pride and gratitude with over 120 education institutes under our umbrella, which includes schools, hospitals, colleges, and Sri Shri University at Cuttack. Gurudev's vision for a value-based education that is both futuristic and deep-rooted in ancient learnings is our inspiration. Having reached over 500,000 students as we move towards our Vision 2030, we work to maximize the impact and imprint of Gurudev's vision for education. When we first started the school, it was a free school. Free school started in 1981. And the talents that the children were exhibiting from the school and the name of the school was so endearing, the school was so endearing, then the people, rural work is happening, how about urban society? This was the question that was asked to me. Then few of our teachers and trustees, it's mainly Brahmateji's effort. In the beginning, Brahmateji said, we are doing for rural schools, but we need good sanskar for teachers in the urban area also, city also. Then they all got together, Brahmateji and our Muralidhar Koteshwar, Divya, they all came to me and said, Gurudev, we need to form a society trust to make this. And then all of them, Chayana was also there, Swami Surya Tej. So I only say yes, no, I just give a stamp. So I said, okay, we'll start a school. But then they said, no, it should have Gurudev's name, otherwise people will not connect with. Okay. So since then, how many? 120 institutions. 120 schools we have in 25 years. Our university is 12 years. That is good, just in less than 15 years. In 13 years from the school, we went to university. So that means when a boy or a girl started our school, in 13 years, they had to go to university. So everything, nature works so well, everything happens in good. Today we have some MOU signing. Yes. Let's do all that, yeah. We are delighted to share in the divine presence of Pujya Gurudev. Sri Shri University is taking 2 significant steps forward in its journey of innovation and excellence by signing 2 landmark MOUs. Partnership with National Institute of Disaster Management, NIDM, which will lead to the establishment of a center
of Excellence in Disaster Risk Resilience at Sri Sri University. This is a major milestone, positioning us as a leader in disaster risk reduction across Eastern India. We'd like to invite the NIDM team on the stage, Shri Rajendra Ratnu, IAS Executive Director, Shri Pavan Kumar, Director MHA DM Government of India, P.S. Reddy, Joint Director NIDM, Dr. Preeti Soni, Senior Program Consultant IUINDRR NIDM, and Ms. Nazia Khan, IPRO and representing Sri Sri University leadership team. It's also collaboration with VIFA Robotics. Sri Sri University is also partnering with VIFA Robotics to establish a global center of excellence in robotics, design, and automation. We cordially invite Mr. Ramesh Krishnamurthy, founder and CEO of Scandish, and Mr. Karan Joshi, co-founder and COO, along with the SSU leadership for the MOU exchange. This Center of Excellence will be a hub for education, research, and skill development, serving students from school to university levels. It will partner with the Skill Development of India, expanding its impact nationwide, while fostering industry collaboration to address real-world challenges in robotics and automation. A happy evening to all of you present here, and with the blessings of Gurudev, it's a unique partnership that we are bringing to India, and this is the first time that a MOU has been signed with an Indian university between Singapore University of Technology and Design and a Singapore University of Technology and Design founded company called VIFA Robotics. And this is going to be a game changer in robotics education in India. And we are pleased to have this arrangement with Sri Sri University. We felt that we need a partner in progress for India in terms of spreading the education. And it's none other than Sri Sri University under the guidance of Gurudev, and so happy to note that 120 schools will also get benefited with this particular education. And that's not all. Now we have a vision of building the skill that is required to improve manufacturing out here in India, and we would want to also share this, that we are bringing a proposal of setting up a manufacturing unit in association with Sri Sri institution. And that's going to benefit a lot of people with employment. And of course, knowledge is something which Gurudev has been spreading for all the while. And nothing less than a blessing from Sri Gurudev to bring in this particular arrangement. And thank you, Gurudev, and thank you all of you who made this possible. I'm looking forward to this. How can current education of today prepare students for future, Gurudev? Education cannot be just stuffing information in young minds. It has to develop personalities. You know, I have seen people who are highly qualified but in their field, but they cannot write one simple acknowledgement letter. They cannot do anything little bit outside their purview of education. That is not what we want, and they're not going to be very successful. One may be a great engineer, but does he have the skill to
to come up or write a project? No, he has to hire someone who will have to write the project. Simply studying one discipline alone is not enough. What we need to do is to bring all-round development in young minds. In this sense, our schools are working towards creating a holistic personality, which are physically fit, emotionally resilient, intellectually sharp, and behaviorally good, palatable, good behavior, attractive personalities. That's what our aim is. So we are giving multidisciplinary studies, and I give this credit to our whole teacher group. They have created several pedagogies, and they have made it so nice for kids to really blossom. Gurudev, with the advent of AI transforming the education landscape, will the role of a teacher become obsolete? And how do we address the challenge of children potentially becoming less creative? When calculators came first time, we were all in college, just entered PUC or something. Our school teachers, high school teachers were so against that. They said, this will make our people dull, they will not understand any mathematics. If you say 2 into 8 is how much, they can't say. It's 16, they have to type in the calculator and then tell you. So it's going to destroy the study of mathematics. This is what the voice of academicians those days. But that has not happened. There is no going back on technology. We only have to look forward. So AI is not a deterrent. It is how we use the technology is what is more important. Yeah. In fact, AI is challenging you to be more creative and be unique. If you do something unique, AI has no avenue at all there. It only goes what is already there. It cannot create something very new, and for that you have to be more innovative. It poses the challenge for you not to go with the chewing gum, but be more creative, the creativity. Yeah? And so in some way, it beckons more creativity from an individual. Yeah? गुरुदेव, मैं आपको सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि आपने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ में श्री श्री यूनिवर्सिटी का बहुत ही अच्छे समय में जो है ये एक MOU हुआ है, और हम बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि आपके आशीर्वाद से इस अच्छे काम की शुरुआत हो रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी पूरी टीम के तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन इस MOU में तो बहुत कुछ होगा, हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। लेकिन आज जो मैं आपसे जो चीज़ें जो हमारी जानकारी बहुत कम है, उन चीज़ों पर आपसे बात करने आया हूँ, जिससे और ये बात शायद कई शताब्दियों की बात मैं कुछ मिनटों में, घंटों में भी नहीं, कुछ मिनटों में आपसे करनी है। तो मैं आपके साथ में हमारे पुराने आदिकाल से लेके आज तक की जो यात्रा है और हमारे भविष्य के बारे में तो बात करना चाहूँगा। हमारे भारतीय संस्कृति में हमारी जो माइथोलॉजी है, उसमें मैं देखता हूँ कि कई तरह के हमारे रेफरेंसेस हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में आए हुए हैं। हम हनुमान जी को संकट मोचन बोलते हैं, वो डिज़ास्टर मैनेजर ही थे, लक्ष्मण की जान बचाई। हम
शिव जी के समय भी हम देखें तो प्रलय की अवधारणा और प्रलय की और उनके जो दो रूप आनंद तांडव और रुद्र तांडव की बात करते हैं। इसी तरह कृष्ण का गोवर्धन पर्वत को उठा लेना, वो भी कहीं न कहीं मुझे लगता है माइथोलॉजी में ये बात डिस्टॉर्ट कहीं शायद हो गई होगी और वो कहीं न कहीं वहाँ के मथुरा के लोगों को, उनके पशुधन को, सबकी रक्षा करते हुए गोवर्धन के ऊपर लेके गए होंगे। आप जो हमारे माइथोलॉजी में जो ये लर्निंग्स है वो हम कैसे आज के आधुनिक हमारे सोच में हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, आपकी विजडम से हम लाभान्वित होना चाहेंगे। जब जब आपत्ति आई मनुष्य कुल के लिए विश्व में, उन सभी संदर्भ में, उन सभी वक्त भगवान वहाँ, ईश्वर वहाँ आके, और ईश्वर कैसे आए? मनुष्य रूप से आए। दैवो मनुष्य रूपेण कहते हैं, मनुष्य रूप से आते हैं। अब आप करें डिजास्टर मैनेजमेंट का, ये तो है, जब भी प्रलय आता है तो ऋषि मुनियों के पास जाते हैं। यहाँ दक्षिण भारत में ये है, जब सागर का इतना बड़ा तूफान उठा, लोग आके प्रार्थना करी, अगस्त्य मुनि ने उसको एक उस पे उठा लिया, कमंडल पे। ऐसे ही जब आदि शंकराचार्य, 12वीं शताब्दी की बात, आदि शंकराचार्य जी नर्मदा तट पर जब उनके गुरु ध्यानस्थ थे, नर्मदा का पानी ऊपर जा रहा था, इन्होंने अपने पानी को थाम लिया ताकि उनकी गुफा में पानी ना आ जाए। तो इस तरह की कहानी हमारे पुराणों में, इतिहास में बहुत देखने को मिलता है। भगवान कृष्ण ने भी कई बार आपने बताया गोवर्धन पर्वत उठाया। अब क्या सिर्फ भगवान अकेले कर सकते थे? मगर सारे ग्वाल भी लग गए उसमें अपने लकड़ी लेके। इसका मतलब यही, जब भी कोई आपत्ति आती है सब लोग इकट्ठे होके उसको संभालो। इंद्र का प्रकोप या इंद्र की जो ईर्ष्या को थामने के लिए सब इकट्ठे हुए। तो ग्वाल भी अपने अपने, तो हम ये ना सोच के बैठे जब डिजास्टर होता है कि भगवान करेंगे। भगवान कहते हैं भाई मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं तू भी इसमें भाग लो। सो सारे ग्वाल अपना जैसे अपनी अपनी डंडे को लगाए। और देखिए कृष्ण जी जब उनका जन्म हुआ, उनको जमुना पार करनी थी, तभी वो हो गया, डिजास्टर आ गया, पानी नाक तक आ गया वसुदेव के। तो प्रकृति का प्रकोप को थामना दैवी गुण है, क्योंकि ये भगवान कृष्ण कहते हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया। ये सारी जो प्रकृति है, ये माया है, ये दैवी गुण से संपन्न है और दैवी गुण से ही इसको थाम सकते हैं। मतलब ये है, जब भी कोई डिजास्टर आता है, कोई आपत्ति आती है, अपना स्थिरता न खो बैठे, अपने कॉन्फिडेंस न खो बैठे, अपने आत्मविश्वास न खो बैठे, धैर्य रखिए। क्यों? ये प्रकृति हमारी अपनी है, अभी थोड़ा रूठ गई, मगर उसको मनाओ। रूठी हुई प्रकृति को मनाना तो खुद ही टूट जाए तो नहीं हो पाएगा। संभालने के लिए आत्मबल चाहिए। वो हमारे इतिहास पुराणों में संदेश देते हैं। उस वक्त दैवी शक्ति है, आपके साथ है, ये मान के चलोगे तो आपके भीतर ऐसी ऊर्जा जागेगी कि आप कोई भी काम आसानी से कर पाते हैं। अब क्या है, कोई आप अभी देखिए बाढ़ आ गया,
बाढ़ आ गया करके सिर पकड़ के रोते रहे, बैठे छाती पीट के रोते रहे तो नहीं चलेगा। उस वक्त आपको सक्रिय होना पड़ेगा। मनोबल टूट जाता है तो सक्रिय नहीं हो सकता कोई भी व्यक्ति। सक्रिय होने के लिए क्या आवश्यकता है? विश्वास और मनोबल। और अध्यात्म से ये दोनों मिलता है। हम अभी 4-5 साल पहले कोविड के बाद, नहीं कोविड इन्हीं दौरान में भी 3 साल पहले होगा, जिनीवा गए थे। वहाँ रेड क्रॉस के हेड से मिले। उन्होंने एक प्रश्न पूछा, गुरुदेव हमने देखा आपके जो वॉलंटियर है वो थकते नहीं हैं, इनमें जो उत्साह मेरे को देखने को मिला है वो हमारे लोगों में कैसे लेके आए। उन्होंने ये पूछा, देखिए हमारे लोग तो बर्नआउट, इतना ज़्यादा बर्नआउट एक्सपीरियंस करते हैं और क्या उनका 40% से ज़्यादा उनका मैनेजमेंट में एक्सपेंस होता है। माने कोई 100 रुपया उनको देते हैं डिज़ास्टर के लिए, इनको सब मैनेज करने के लिए 45 रुपया उसमें चला जाता है। इतना खर्चा होता है। आपका तो 5 और 10 के बीच में है। ये आप कैसे संभव करते हुए हमको बताया। तब हमने उनको बताया कि ये देखिए आत्मबल की ज़रूरत है, सिर्फ पैसे से ही सारा काम होता है ये नहीं। और अच्छे दिल वाले, जिनका अच्छा इंटेंशन अच्छा है, उनका उद्देश्य अच्छा है, अच्छा करना चाहते भी हैं, मगर आप उनको बाकी सब उपकरण तो देते हो, गाड़ी दे देते हो, चीज़ें दे देते हो, मगर मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ करते नहीं हैं और उनकी थकान मिटाने के लिए कुछ करते नहीं हैं, तो शीघ्र ही थक जाते हैं। तब हमने कहा देखिए हमारे लोग क्या करते हैं, उनको ट्रॉमा रिलीफ भी कराते हैं, ध्यान भी सिखाते हैं, खुद भी ध्यान करते हैं, तो जिनसे भी मिलते हैं तो हमेशा प्रसन्न मुख रहते हैं, मुस्कुराते मुस्कुराते कोई आए आपका मदद करे आपको कितना अच्छा लगता है। अभी वो थके मारे आदमी, आप वहाँ काम करने जाते हैं, वो आदमी एक ही प्रश्न 10 बार पूछेगा। ये सर्वे साधारण है, सामान्य है। कोई व्यक्ति आपको एक प्रश्न 10 बार पूछे तो आपको क्या होगा? गुस्सा आता है, इरिटेशन होता है और तनाव से भर जाते हैं। मगर आप में वो स्थैर्य है, धैर्य है और मुस्कान है, तो आप ऐसे क्लिष्ट परिस्थिति में भी बहुत आराम से आगे लोगों को भी लेके जा सकते हो, खुद भी निकल जाओगे। ये इसीलिए मैं कहता हूँ ये बहुत आवश्यक है। अब देखिए यूक्रेन में इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, वहाँ हम अपनी संस्था आर्ट ऑफ लिविंग भी वहाँ बहुत काम करते थे। वहाँ मैंने उन लोगों को कहा देखो यहाँ युद्ध हो रहा, हमारे टीचर से ज़्यादा नहीं, बहुत छोटा सा 35 टीचर हैं वहाँ, 34 है, 35 भी नहीं, 34 टीचर थे वहाँ हैं अभी भी। वो तो हमने कहा है आप लोगों को कि देखो वहाँ समस्या हो तो आप अपने परिवार के साथ बॉर्डर क्रॉस करके आ जाओ, पोलैंड में, जर्मनी में, हंगरी में, हम अपने संस्था में आपको रहने वहने का, खाने पीने का सब व्यवस्था कर दें। उन लोगों ने पता क्या कहा, गुरुदेव हम और लोगों को भेजेंगे मगर हमको यहाँ रह के काम करना है। हमारी यहाँ आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। इस वक्त लोग तनाव से ग्रस्त हैं। अब वो लोग
अपना उस वक्त ध्यान, लोग पूछते हैं अरे युद्ध की जगह पर ध्यान ज्ञान की क्या बात कर सकते तुम लोग, वहाँ तो युद्ध के वक्त तो किसको जचेगा। मैंने कहा देखो गीता का ज्ञान मिला युद्ध में ही, युद्ध से पहले युद्ध क्षेत्र में ही तो गीता का ज्ञान आया। ध्यान की जरूरत युद्ध क्षेत्र में है। ऐसे फिर वहाँ पर लोगों को, आर्मी ऑफिसर्स को, आर्मी को, सबको ध्यान सिखाया। वो लोग इतने, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी गए तो वहाँ डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी उनसे मिले तो उन्होंने उनको धन्यवाद दी। वे भारत से गुरुदेव का ये जो ज्ञान हमको मिला, इससे हमें आत्मबल, मनोबल बढ़ गया। कहने का ये मतलब है कि मनोबल रहे तो आत्मबल रहे तो मुस्कुराते मुस्कुराते काम में लग सकते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ वहाँ हंसो, जब वो भी गलत है। माने तनाव विहीन होके, तनाव मुक्त होकर के तुम काम कर सकते हो। यदि तनाव आ भी जाता है, तुम्हें पता है इससे तनाव से बाहर कैसे आ जाना। धन्यवाद गुरुदेव। मैं इन्हीं प्रश्नों के ऊपर मैं सोच रहा था आऊँगा, तो आपको तो पहले से पता लग जाता कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। तो इससे पहले कि मैं मेडिटेशन और आपके इंटरनेशनल एंगेजमेंट के बारे में आऊँ, मैं पुनः आपको हमारे भूत और हमारी सांस्कृतिक धरोहर की ओर ले जाना चाहूँगा कि हमारे जो शास्त्र हैं भारत उपखंड में, वो चाहे तिरुवल्लुर का तिरुकुरल हो या फिर हमारे वेद हो, उसमें कई जगह पे बहुत सारी विजडम है जो आज के समय में हमारे को, जब जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ रहा है, हमारे बहुत डिज़ास्टर्स बढ़ रहे हैं, ऐसे में उस विजडम को किस तरह से हम आज के समय में हमारी इस सोच में, हमारे लर्निंग्स में हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे हमारे सरस्वती नदी के बारे में इतना कुछ आता है, वो विलुप्त हो गई, तो बहुत बड़े इवेंट्स पहले भी होते रहे होंगे और उन चीज़ों की, जो ऋषि मुनियों की जो विजडम वहाँ पे थी, वो हम लोगों को तो न संस्कृत सीखने का मौका मिला और हमारे आगे वाली जनरेशन को तो और भी मतलब उनको अपने टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन से ही फुर्सत नहीं है। वेद कौन पढ़ेगा। तो बहुत अच्छी बात है कि आप उसमें से बहुत कुछ यहाँ पे शिक्षा भी दे रहे हैं और जो स्क्रिप्चर्स के बारे में भी। तो वो जो हमारी हिडन नॉलेज, जो ट्रेजर है, उसको हम कैसे उपयोग में ला सकते हैं और उसमें क्या क्या ऐसा छुपा हुआ है जिसको कैसे हम उस विजडम को यूज़ कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड बेटर एंड टू उसको बेहतर तरीके से आज के क्लाइमेट चेंज और डिज़ास्टर्स को समझने और मैनेज करने में। हमारे यहाँ पहले से ये प्रथा रहा है कि आप जब एक वृक्ष को काटने जाओगे तो उससे पहले उस वृक्ष से हमें अनुमति लेना है। और अनुमति लेते वक्त क्या आप उनको कहोगे कि हम 5 वृक्ष आप ही के जाति के हम लगाएंगे। यह प्रतिज्ञा दे करके, यह भरोसा दे करके हम उस वृक्ष को काटते हैं, ताकि कभी काटना पड़ता है वृक्ष। तो पर्यावरण को शुद्ध रखना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना बहुत आवश्यक है। जहाँ तक प्राकृतिक डिजास्टर्स की बात होती है, हमारे पूर्वज पानी को भगवती का रूप माना, वरुण देवता का रूप माना। जो जल के बिना जीवन नहीं है और हम जल को प्रदूषित करते जाएंगे, उसके स्रोत को हम सुखा देते हैं, तो जीवन दुबारी पड़ जाता है। यहाँ जीवन जो है मुश्किल में पड़ जाता है। इसलिए जल की स्रोतों को सम्मान करना माने उसको प्रदूषित नहीं करना।
हम क्या करते हैं, सम्मान माने वो जल में जाके चूड़ी डाला, कपड़े डाला, वहाँ ले जाके सब मंगल द्रव्य डाल दिया, जब गंगा मैया को नमस्कार कर देते, इससे कावेरी को नमस्कार कर देते, ऐसे ये नहीं है। गंदे नाले कावेरी में मिले ना, गंदे नाले यमुना जी में मिले ना। और यमुना जी में जब स्नान करने जाते हैं, वहाँ देखिए हम किस तरह के केमिकल्स वहाँ डालते हैं, साबुन कौन सा वहाँ लगाते हैं। कितने सारे लोग ऐसे ऐसी साबुन जिसमें इतने सारे केमिकल्स होते हैं वो लगाते हैं, मछलियाँ मर जाती है, इससे प्रदूषण हो जाता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा, शुद्धता, पानी की शुद्धता देख, ऐसे पृथ्वी की शुद्धता। पृथ्वी में हम जहरीली चीज़ें डालते हैं, फिर उसमें उपज तो थोड़े समय के लिए आता है, फिर सारा बंद हो जाता है। हमारा जो प्रकृति है, पृथ्वी है, भारत में खासतौर से बोलते हैं कि डॉक्टर बोले इसको अनीमिया की बीमारी हो गई, अनीमिया से ये जूझ रही है। इसे गो संवर्धन, प्रकृति का संरक्षण, वायु में प्रदूषण न करना चाहिए, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, आवश्यक है। और शब्द, इतना लाउड स्पीकर लगा के आवाज़ करते हैं, इससे क्या होता है, पर बाकी जो पक्षियाँ होती है, पशु होती है, ये ट्रॉमेटिक अनुभव करते हैं। पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन भी बहुत बड़ा पोल्यूशन है, इस पर ज़्यादा शोध काम होना चाहिए, अब नहीं हो रहा है, इस पर होना चाहिए। अब देखिए जहाँ बड़े बड़े लाउड स्पीकर होते हैं वहाँ चिड़िया उड़िया सब भाग जाते हैं, और जहाँ शांत है वातावरण, कोई नॉइस पोल्यूशन नहीं है, शब्दों से प्रदूषण नहीं है, तो प्रकृति आह्लादित होती है, चिड़िया बहुत आ जाती, तरह तरह की चिड़िया वहाँ हो जाती। तो ये एक चीज़, यही पंचभूत को हमें शुद्ध रखना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, अग्नि का तो है ही पता है सबको, वायु और आकाश। 8 प्रकृति में ये 5 तो हो गया, फिर 3 हुआ, मन, बुद्धि, अहंकार। इनको भी शुद्ध रखना है, क्यों? अहंकार के वजह से सारे युद्ध होते समाज में। जितने भी युद्ध हुए, एक व्यक्ति के अहंकार, मन की नासमझी, बुद्धि की भ्रष्ट होने पर युद्ध होते जगह जगह। दुर्योधन का बुद्धि भ्रष्ट ना होता तो महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। सो बुद्धि भ्रष्टता से क्या हुआ? नुकसान हुआ बहुत बड़ा। ऐसे ही अब देख रहे हैं आप, यूक्रेन और रशिया के बीच में हो रहा है क्या? अहंकार, बुद्धि का नासमझ, संपर्क, बातचीत से नहीं हो पा रही है बातचीत को करना चाहिए। भारत सरकार यही इसी पर जोर दे रही है कि युद्ध का समय नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ये बोले कि ये युद्ध का समय नहीं है, हम लोग आपस में मिलजुल बात करके इसको रिजॉल्व करना चाहिए। यही जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है वही बोलेंगे, नहीं तो इससे आपत्ति तो बढ़ती जाएगी तरह तरह की। और हम लोग अपना पुराने इतिहास में देखेंगे तो वहाँ पर यही देखने को मिलता है, जो सजगता से और उपकरण से नहीं हो पाता है, वो प्रार्थना से भी होती है। जो इससे नहीं हो पाता, दोनों हाथ खड़ा कर दे, प्रार्थना करें, और प्रार्थना से भी प्रकृति में परिवर्तन आती ही है,
व्यक्ति में परिवर्तन आ जाता। हमारे यहाँ पर जो एनवायरनमेंट सब देखता है, हमारा ही यहाँ एक सेवक जो सांपों को देखता रहते, सांप दत्ता ने सांप इधर उधर सब जगह फंस जाती है, कहीं पाइप में कहीं उधर, ये जाके उसको छुड़वा के छोड़ देता। मगर एक सांप वहाँ शिव मंदिर में घूमता रहा। वो आज बता रहे थे, वो वहाँ से उसको जाना तो बाहर जाके लोग वहाँ जाते हैं शिव जी पर जल चढ़ाने, सांप वहाँ बैठा रहता। तो इसने उसको कैसे भी वहाँ निकालने की चेष्टा करी, तो वो डंक मारने आ गया था वो सर, वो मान ही नहीं रहा था। बोले कि इतना गुस्सा वाला मैंने कोई सांप नहीं देखा। फिर वो आ ही नहीं रहा था, उसने तो हजारों सांपों को बचाया, उठा के दूसरी जगह रखा। फिर उसने कहा, मैंने आंख बंद करके उसको प्रार्थना करी, भाई आज तुम शांत हो जाओ, यही पास में ही तुम्हें छोड़ देता हूँ। इसने प्रार्थना करते ही वो सांप जो है शांत हो गया। फिर इसने उसको उठा के बाजू वाला वही मंदिर के पीछे कहीं छोड़ दिया। मैं आप देखेंगे एक बार हाथियाँ घुस करके केरला में एक पूरा केले का वन को विध्वंस कर दिया। लेकिन उनकी जगह पर आदमी पहुंच गए, तो उनको तो फिर केले के बगीचे में आना मजबूरी होगी। तो वो आके जब विध्वंस करने लगा, किया है वो हाथियों को झुंड के झुंड, एक पेड़ को उसने छुआ नहीं, ये केले का पेड़। आप उस देख के आश्चर्य हो जाओगे, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे ये सुन के। उस केले के पेड़ के ऊपर चिड़िया ने घोंसला बना रखे, बहुत सारे घोंसले थे। वो एक पेड़ में घोंसले थे, बहुत सारी चिड़िया उसमें थी, अंडे थी। तो हाथी ने उस एक पेड़ को नहीं कुछ किया, आसपास के करीब 200 पेड़ इसने सब ध्वंस कर दिए। तो प्रकृति सुनती है, प्रकृति जीवित है, जागृत है, ये हमें समझना। एक दूसरी बात है, उस वक्त त्रस्त आदमी को जाके उनका मन को कैसे तुम्हें संभालना है। वो तो समझते हैं सब कुछ खो गया, ये हो गया, वो हो गया, छाती बीती पीट के रोने लगेंगे। उस वक्त उनको भरोसा देना चाहिए, देखो हम हैं साथ में, हम भी आपके हैं, आप हमारे हो। गुरुदेव एकदम सही बात कही आपने कि प्रकृति है वो जागृत है, जीवित है, लेकिन दुर्भाग्यवश मनुष्य है वो जागृत नहीं है और वो सुषुप्त अवस्था में सोया हुआ है, और उसे जगाने का काम आप बहुत बखूबी से कर रहे हैं। और जो आपने बाहरी प्रदूषण की बात की, जलवायु की बात की और आंतरिक प्रदूषण की भी बात की, तो आप जो मेडिटेशन जो है और जो ध्यान की क्रिया है, जो ध्यान का शास्त्र है, ध्यान का विज्ञान है, उसको जनसाधारण तक बहुत ही अच्छी तरीके से पहुंचा रहे हैं। सरकार की तरफ से हम बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए 2016 में एक 10 सूत्री कार्यक्रम दिया, जिसको हम चाहते हैं कि पूरे हम भी मतलब पूरे मन तन से उसमें लगे हुए हैं। लेकिन हमें कहीं ना कहीं लगता है कि खतरों के बाद में लोगों के आजीविका हम ला पा रहे हैं, उनके घर बना पा रहे हैं, लेकिन जो उस प्रक्रिया में जो उनके दिल के ऊपर, उनके दिमाग के ऊपर में, उनके मन के ऊपर में, मैं 2002 से लगभग 2 दशक तक तमिलनाडु में अलग अलग डिज़ास्टर्स मैंने मैनेज किए हैं, सुनामी से लेके कई तरह के। तो मुझे लगता है कि घरों को बनाना आसान है, सड़कों को बनाना आसान है, पुलों को बनाना आसान है, वो विज्ञान हम सरकारी लोगों में हम सीख पाते हैं। आपके साथ में जो हमारा NIDM ने जो MOU किया है, वो इसलिए कि आपकी एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो हमारे सरकारी लोगों में हमें वो नहीं है। आप लोगों तक आउटरीच करते हैं, और हमने देखा आपका देश में और विदेश में कार्य किस तरह से। एक पोस्ट डिजास्टर में आप इवन सुनामी के बाद में मैं चिदम्बरम में था और नागापट्टनम में आपका कार्य हमने देखा। तो आप
जो मेडिटेशन और साइको सोशल सपोर्ट जो आपका इतना लंबा अनुभव रहा है, उससे जो हम लोग घरों को निर्माण करते हैं, आप जो टूटे हुए दिल को, टूटे हुए मन को, हताश हुए लोगों को, उनको फिर से संबल और हौसला दिलाने के लिए मेडिटेशन का क्या स्कोप देखते हैं पोस्ट डिजास्टर सिनेरियो में? देखिए, व्यक्ति के भीतर ये भाव है ही, अपनापन का भाव है, अध्यात्म का भाव है। मैं एक छोटा सा एक इंस्टेंस बताता हूँ आपको। जब गुजरात में एक भूकंप आया, एक महिला मंदिर गई थी सुबह, और जब वो वापस आई तब तक सुबह 7:30 बजे, 7:15 बजे भूकंप आया। उसका 3 मंजिल का मकान सब ध्वस्त हो गया था, उसके सारे परिवार, सब लोग खत्म हो चुके थे। और ये महिला 65 साल की होगी, 70 साल की होगी, वो अकेली। और हमारे स्वामी लोग वहाँ काम करते थे, और एक स्वामी के पास वो महिला आई, उन्होंने अपने पोटली से निकाल के 100 रुपया दिया। हमारे स्वामी ने तो कहा, देख माँ, हम लेने के लिए नहीं आए, हम देने आए, हमें नहीं चाहिए। तब आपको पता है वो महिला ने क्या बताया? स्वामी जी, ये भूकंप ने मेरे से सब कुछ ले लिया, मगर ये मेरा धर्म है, मैं भी काम में आऊँ, मैं सहायता करूँ, मैं आप इससे भी मुझे वंचित मत करिए। आप इतना काम कर रहे हैं, मैं भी इसमें सहभागी हो जाऊं, मेरे पास से इतना पैसा आप ले लीजिए। तो ये भाव लोगों में है अभी भी, ताकि हम दूसरों के काम आए। जब सुनामी के वक्त जो समुदाय अलग अलग थे, अब वो तो मंदिरें सब खुल गई, सब लोग मंदिर में, पहले तो मंदिर में नहीं आते थे। ईसाई संप्रदाय को अनुकरण करने वाले लोग तमिलनाडु में मंदिर के पास नहीं आते थे। वहाँ का बड़े बड़े चर्च में जब पानी घुस गया, विध्वंस हो गया, वो सब लोग मंदिर में आए, वहाँ बैठे। लोगों ने, मंदिर के लोगों ने भी सबको खाना खिलाया, सब वस्त्र दिया, सब क्या। इस तरह से कुछ जगह चर्च में भी हुआ है ऐसे, तो मस्जिद में भी। माने आपदा एक तरफ से भय पैदा करता है, दूसरी तरफ से आदमी को जोड़ता भी है। ये बड़ा विचित्र है। मैं हमेशा कहता हूँ, आपदा के लिए तुम वेट नहीं करो, इंतज़ार न करो, अपनापन महसूस करने के लिए। आपदा में तो हो ही जाता है, अपनापन आ ही जाता है, एक दूसरे के काम में आ जाता है। अभी आंध्र प्रदेश में अभी जो डिजास्टर हुआ, मेरे को कल ही आया तो वीडियोस आए कि जैसे वहाँ बाढ़ आ गई, अपना आर्ट ऑफ लिविंग के जितने साधक थे लोग, सब 500 लोग इकट्ठे होके भोजन बनाया, पूरे शहर में कोने कोने में जाके भोजन डिस्ट्रीब्यूट किया। हमने बोला नहीं था किसी को ये करो, ये करने के बाद मेरे पास आता है सब रिपोर्ट, मैंने हम लोगों ने ये किया। ये दर्शाता है व्यक्ति के अंतर से जब वो भाव खिल उठता है तो सेवा का काम सहज ही होने लगता है। तो ये आवश्यक है। और डिजास्टर रिलीफ में तो पूरा ये ट्रेनिंग है, आपका ये संस्था बहुत अहम काम कर रही है कि आप ट्रेनिंग दे रहे हो। उस वक्त क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या आपका उद्देश्य ठीक हो सकता है, मगर आपका कृत्य में दोष है तो आपका लक्ष्य नहीं, आप लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए वो ये ट्रेनिंग भी आवश्यक है। मगर इससे पहले हमको जो ट्रेनिंग मिलता था, सब हम विदेश से हमारे लोगों को ट्रेनिंग मिलती थी। अब भारत का अपना मूल को लेके हम यदि उनको ट्रेनिंग देते हैं, इसमें
ताकि हमारी साइकोलॉजी, मैं बोलता हूँ कि बहुत ही श्रेष्ठ साइकोलॉजी, क्यों हमारे ऋषि मुनियों ने मन के बारे में जो स्टडी किया है, मन के बारे में जानकारी लिया है, वो मॉडर्न साइकोलॉजी में है ही नहीं। मॉडर्न साइकोलॉजी तो अभी किंडरगार्टन में है, हमारा साइकोलॉजी कहाँ है, PhD के लेवल पे। इसका मतलब ये नहीं तो साइकोलॉजिस्ट के पास मत जाओ, जब ज़रूरत है तो वो भी यूज़ करना चाहिए, वो भी आवश्यकता है, ये भी आवश्यक है। मगर ये ज्ञान ध्यान और हमारे शास्त्र पुराणों में बहुत गहराई से इसका उल्लेखन और विश्लेषण है। नहीं, मैं इस बात को मानता हूँ। मैं स्वयं साइकोलॉजी मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूँ और जो मनोविज्ञान का इतिहास है वो ज़्यादा से ज़्यादा 200 साल पुराना है, जबकि हमारे यहाँ पर जो इसके ऊपर में हज़ारों सालों से चिंतन हो रहा है, और जो हमारी एपिस्टेमोलॉजी, हमारी मेटाफिजिक्स है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है उस तरह की आई हुई है। जिसे आज जो हमारा मेडिटेशन है, इसके ऊपर बहुत सारा शोध अमेरिका में हुआ है 60s और 70s में, और रिसर्च में उन्होंने पाया कि जो हमारा वो बाकी जिसको हम इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स बोलते हैं, हार्ट बीट और वो से, देयर इज़ ए डायरेक्ट कोरिलेशन जिसमें पाया गया कि meditators have a less susceptibility to cardiac disease because they are much more settled. So modern science is recognizing the Indian scriptures. You are very right in many ways. गुरुदेव, में आपने जो बात कहा कि हम रिस्पॉन्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम एक डिजास्टर हो जाता है, खतरा हो जाता है, उसके बाद में बहुत अच्छा सेवा कार्य आप बहुत अच्छा करते हैं, सरकार की तरफ से भी हम बहुत बड़े पैकेजेस देते हैं, लेकिन हम जो प्रयास कर रहे हैं अपनी संस्थान के द्वारा, हमारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, MHA और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि मिटिगेशन का एजेंडा, कि खतरों के लिए हम सिर्फ एक रिएक्टिव अप्रोच नहीं रखें, लेकिन हम कैसे, तो जो हमारा पूरा डिजास्टर एंड डेवलपमेंट का डायलेमा है कि एक तरफ जो पाश्चात्य संस्कृति ने, जो हमारे वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, इफ़ वी गो बाय दैट पेस ऑफ कंजप्शन, we require at least 3 planets in next 100 years. But unfortunately we have एक ही धरती है हमारे पास में, we have only one earth. India also wants to grow, and there is rightly so that we also have to give a good standard of living to our people. There has to be more inclusive growth to our farmers, to our people. They have to have better jobs. एक तरफ ये ख्याल आता है, लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि जब ये विकास आगे बढ़ता है तो इसके कारण रिसोर्सेज के ऊपर और प्रेशर बढ़ता है, और उसके कारण एमिशंस और बढ़ते हैं, और उसकी वजह से धरती का तापमान जो प्री इंडस्ट्रियल एरा से आज के समय में 1.2 डिग्री है। देखिए, हम समस्याओं को गिनते जाएंगे तो अनगिनत है, बहुत समस्याएं हैं। हमें ये देखना चाहिए हम क्या कर सकते हैं। वही मेरा प्रश्न है गुरुदेव। जब हम ये इस पर दृष्टि डालेंगे, हम क्या कर सकते हैं, और जो कर सकते हैं उसको करना चाहिए हमें। जो नहीं कर सकते हैं उसको सोचने से क्या हो जाता है कि जो करने की जो उत्साह है वो वहीं कहीं दब जाता है। वैसे प्लास्टिक का है, उदाहरण के लिए प्लास्टिक के बगैर चलना चाहिए। कायदे से देखा तो प्लास्टिक बहुत प्रदूषण करता है, मगर मैं कहता हूँ ये कहाँ से शुरू होना चाहिए? 5 स्टार होटलों से। वहाँ छोटी छोटी चीज़ों में सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ करते हैं। वहाँ साबुन हो या बड्स हो, ईयरबड्स हो, सब में प्लास्टिक, और हर चीज़ में प्लास्टिक। वहाँ जितना प्लास्टिक वे 5 स्टार होटल वगैरह में से निकलता है उतना। अच्छा, गांव में कोई व्यक्ति कुछ चकली बेच रहा है, कोई कुछ कुरमुरा बेच रहा है, उसको प्लास्टिक में रहना वहाँ आवश्यक है, क्योंकि गांव में यदि धूल है, जहाँ पर डस्ट है और बैक्टीरियाज की खतरा है, वहाँ प्लास्टिक यूज़ करना ज़्यादा आवश्यक लगता है। माने उधर भी अवॉइड तो करना चाहिए, पेपर बैग हो तो बहुत अच्छा। मगर हम क्या करते हैं,
भारत पर जोर डालते हैं तुम लोग प्लास्टिक मत यूज़ करो। अमेरिका जाके देखो, भारत से 1/3 लोग अमेरिका में रहते हैं, मगर भारत से 4 गुना अधिक प्लास्टिक वो लोग यूज़ करते। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये अब कोरोना ने हमको सिखा दिया क्या, जी हमारा कोई बॉर्डर नहीं है। इसी तरह से प्रकृति ने भी ये सिखा दिया हमारा कोई बॉर्डर नहीं, मानवतावादी हमें बनना है, मानवता के लिए काम करें और प्रकृति को ध्येय में रखे, जो हम कर सकते वो काम अवश्य करें। अच्छा, वॉलंटियर बने, जब भी ऐसा कोई आपदा आती है तो वॉलंटियर बने, और जहाँ जहाँ लगता है आपदा पैदा कर सकती है ये परिस्थिति, उसको रोकने के लिए प्रयास करें। वो सब मिल के करेंगे तो हो पाएगा, अकेले नहीं हो पाएगा। तो इतना आज इतना काफ़ी है। आप सब आपने ये क्या अच्छा एक अच्छा ट्रेनिंग हो, अधिक से अधिक युवा जुड़े और एक सुंदर समाज का निर्माण हो, इसी पे हम सब लोग जोर देते हैं। ठीक है।